Hello everyone, a warm welcome to all of you at our YouTube channel CA Sansar. I am Pooja Soni from CA Sansar, and today we are going to discuss about audit of non-fund based credit facility in bank branch audit advances. For this discussion, we have our wonderful speaker CA Vivek Khurana sir. A warm welcome to you sir, and thank you for joining us and giving us your valuable time. Now, before starting the discussion, my request to all of you kindly like our videos and subscribe our YouTube channel CA Sansar and also press the bell icon so that you will get all the latest update of CA Sansar. So, back to the topic. Sir, can you please guide us on the topic? Thank you very much, Pooja ji, for such a warm welcome. And my sincere thanks to Team CS Ansar for giving me once again opportunity on your platform to discuss on some another important topic. So today we will discuss about the audit of non-fund based facilities. So earlier we had recorded the audit of advances. Maximum times we have discussed about the fund-based activities. So now I will also means the person who are not aware of the fund-based and the non-fund-based, what's the difference, how it's involved, evolved, everything, and also we'll discuss about from the point of view as the bank branch auditor and the audit checklist. तो everything will discuss and we'll also share the audit checklist यहाँ पे तो I will discuss in the summary but if anyone needs in detail so we'll share the detailed audit checklist. So let me first show you through the PPT. Yes. So in bank branch audit, audit of non-fund based credit facilities, audit checklist that we will discuss. Before that, one disclaimer is there. All these are my personal views and can't be constituted to the views of any other person or any other authority. And please don't take it any legal opinion, legal advice, personal opinion, professional opinion, or the professional advice. And then purpose of this video is to just spread knowledge, information, awareness, and shall not be treated as solicitation in any manner or for any other purpose. And my request to all of you, please also cross check the RBI notification, bank circular, bank notification, ICI guidance note. So thank you. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नॉन फंड बेस्ड जो हमारी जो नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज है ये हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस सेक्टर वाइज सिक्योरिटी वाइज देन द प्रूडेंशियल नॉर्म्स वाइज बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंड वाइज तो फंड बेस्ड एंड द नॉन फंड बेस्ड भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कौन सा सीसी लिमिट ओडी लिमिट टर्म लोन एक्सेट्रा ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं मैनी मैनी टाइम्स बट नॉन फंड बेस्ड जिसमें है हमारा बैंक गारंटी जिसको हम कहते हैं बीजी एंड द लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी तो जो नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज है रिमेंबर दिस थिंग as a bank branch auditor it's also our duty to check the non fund based credit facility हालांकि जो हमारी फीस है that's based on the fund based advances but in also लफार में भी आपको so many 3 4 I think 2 3 4 5 पॉइंट्स आर देयर जहां पे आपको डिटेल्स मेंशन करनी है रिगार्डिंग द नॉन फंड बेस्ड और जो आपके लार्ज एडवांसेस है दैट्स आल्सो 10% ऑफ द फंड बेस्ड एंड द नॉन फंड बेस्ड तो इट्स योर ड्यूटी कई बार हम स्किप कर देते हैं नॉन फंड बेस्ड में बट नो यू हैव टू चेक द नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज आल्सो नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी तो जो नॉन फंड बेस्ड क्या है डिफरेंस क्या है फंड बेस्ड में क्या जो आपका सीसी या ओडी लिमिट या टर्म लोन मींस वेयर वी प्रोवाइड द फंड्स इमीडिएटली कि लोन सैंक्शन हुआ हमने डिसबर्समेंट की लोन्स वगैरह बट इन नॉन फंड बेस्ड इट्स नॉट लाइक दैट वी गिव्स द लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी वेयर फंड्स आर नॉट इमीडिएटली डिस्बर्स्ड आफ्टर सम इवेंट हैपेंस अगर डिफॉल्ट आपका जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर या जो एप्लीकेंट्स है वो नहीं पे करता in that case bank have to pay to immediately fund need that's why it's called non fund based credit facility and this is the contingent liability of the बैंक की कंटीजेंट लाइबिलिटीज है बिकॉज कभी भी बैंक हैव टू पे तो दैट्स व्हाई यू हैव टू चेक वेदर इट्स शोन इनटू द बैलेंस शीट ऑफ द जो आप ब्रांच ऑडिट कर रहे हो उनमें है या नहीं उसमें सीबीएस में तो वो भी हम सब डिस्कस करेंगे तो इसमें जो की डिफरेंस है एलसी जो लेटर ऑफ क्रेडिट है एंड बैंक गारंटी है उसमें क्या की डिफरेंस है आई नो यू ऑल अवेयर अबाउट दैट बट ठीक है लेट्स रिकैप
प्राइमरी पर्पस जो है, बेसिकली जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, इट्स फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड, मींस किसी को इंपोर्ट करना है तो उस पर्पस के लिए बैंक इशूड द लेटर ऑफ क्रेडिट. एंड बैंक गारंटी, इट्स आइदर फॉर द परफॉर्मेंस और द पेमेंट गारंटी. एंड रिमेंबर वन थिंग, एलसी एंड बीजी डिफरेंट टाइप्स आर देयर, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे. जैसे बैंक गारंटी है, परफॉर्मेंस गारंटी है, पेमेंट गारंटी है, तो फाइनेंशियल गारंटी, तो ऐसा अभी हम कुछ डिस्कस नहीं करें, बस मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ. देन रिस्क मिटिगेशन, दिस एलसी कब होगा, जब नॉन पेमेंट, बायर पेमेंट नहीं करेगा, या फिर बैंक गारंटी केस में नॉन परफॉर्मेंस आर डिफॉल्ट बाय द एप्लीकेंट. देन पेमेंट ट्रिगर कब होगी, जब कंडीशन जो उसकी आउटलाइन है इन द एलसी, या उसमें नॉन परफॉर्मेंस होगी बीजी में. यूसेज बता दिया आपको, इंटरनेशनल ट्रेड में इसमें ये वेरियस कॉन्ट्रैक्ट है, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट है, उसमें यूज होते हैं. देन जो कई बार हम वर्ड्स यूज करते हैं, एलसी डिवॉल्व होगी या बीजी इन्वोक होगी. व्हाट डज मीन्स जब एलसी डिवॉल्व होगी तो इंपोर्टेंट या जो आपका बायर है, तो ही इज नॉट एबल टू, मीन्स ही फेल्ड टू रिपे द अमाउंट. देन इन दैट केस बैंक हैव टू पे, तो उसको कहते हैं एलसी डिवॉल्व होगी. दैट पर्सन जो इसको अपने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया, दैट आस्क फ्रॉम द बैंक इन केस ऑफ डिफॉल्ट. या फिर बैंक गारंटी इन्वोक हो रही है कि जो बेनिफिशियरी है ऑफ द बैंक गारंटी मेक्स ए क्लेम दैट बैंक इज ऑब्लिगेशन टू पे. तो इन दैट केस जो ये नॉन फंड फैसिलिटी है, इट बिकम्स द फंड बेस्ड फैसिलिटी, बिकॉज इन दैट केस बैंक हैव टू पे. तो बैंक क्या करेगा, पर्सन को जो एलसी या बीजी के केस में पेमेंट कर देगा, एंड डेबिट टू द जो रेलेवेंस पर्सन है, जो आपका जो इंपोर्टर बायर है या फिर जो एप्लीकेंट है, तो उसको डेबिट कर देंगे. तो इसमें जो एक क्राइटेरिया है, इसमें भी एक बहुत क्रक्स है. रिमेंबर दैट थिंग, दैट यू हैव टू केयरफुली चेक. जैसे कोई एलसी या बीजी, एलसी डिवोल्व हो गया, बीजी इन्वोक होगी, तो वो क्या करेगा, बैंक उसको सेपरेट अकाउंट में दिखा देगा. बट व्हाट दे हैव टू डू, अगर उसका पार्टी का अगर कोई सीसीओडी अकाउंट है तो वहां पे उसको डेबिट करना है. बट कई बार वो स्मार्टली प्ले कर जाते हैं, क्योंकि उसमें लिमिट क्रॉस हो चुकी है उसकी, सैंक्शन एडीपी लिमिट के, अगर वो डालेंगे तो क्रॉस हो जाएगी. इन दैट केस वो उसको सेपरेटली शो करते हैं. दैट यू हैव टू चेक. इन दैट केस वो हमने कई क्वेश्चंस भी करे हैं, आगे भी फिर फर्दर डिस्कस करेंगे. इन दैट केस बोथ अकाउंट शुड बी एनपीए. एंड अगर उसका कोई नहीं है अकाउंट, तो उसको फिर बैंक जो अगर बीजी है तो उस केस में वो उसको अलग से एक लोन अकाउंट ओपन कर देते हैं. अगर उसका कोई सीसीओडी या टर्म लोन अकाउंट नहीं चल रहा तो उसको अलग से एक ओपन कर देते हैं. दिस इज द मेजरली जो डिफरेंस था एलसी डिवॉल्व या बीजी इन्वोक. नाउ जो इसकी समरी है, जो हम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते हैं कि अगर एलसी ओपन करी या बीजी ओपन करी, तो उस केस में इनिशियल स्टेज में क्या होता है, बैंक को तो पेमेंट नहीं करनी इनिशियल स्टेज में. इट्स ओनली द कंटीजेंट लायबिलिटी. इनिशियली स्टेज पे तो कंटीजेंट लायबिलिटी एलसीबी और बीजीबी. बट जब अगर बैंक को पेमेंट कर गई, अगर वो कब पेमेंट करनी पड़ेगी, जब बायर फेल्स टू पे, या फिर जो बीजी के केस में एप्लीकेंट फेल टू मीट द कॉन्टेक्चुअल एप्लीकेशन. तो बैंक जब पे करता है, एलसी मेच्योर हो जाती है और बायर डजंट पे, या फिर इनवोकेशन बाय द बेनिफिशियरी, और उस केस में भी मैंने आपको बताया लोन क्रिएशन हो जाती है एलसी में, या अगर उसका सीसीओडी अकाउंट है तो उसके अकॉर्डिंगली वहां पे डेबिट हो जाते हैं. तो एनपीए क्लासिफिकेशन सेम थिंग, जो आपका टर्म लोन में चल रहा है या सीसीओडी में आउट ऑफ ऑर्डर है या मोर देन 90 डेज है, सेम थिंग विल बी देयर. तो इनिशियल स्टेज पे अगर कोई एलसी या बीजी ओपन कर रहा है बैंक, यू हैव टू ओनली चेक, उसको भी हम डिस्कस भी करेंगे आपकी जो ऑडिट चेकलिस्ट में, कि सीबीएस में प्रॉपरली क्लासिफाइड है या नहीं, एंड इट्स एज द कंटीजेंट लायबिलिटी. देन नेक्स्ट है जो आपको रिपोर्टिंग करनी है लफार में. तो एक तो यहाँ पे जो एडवांसेस में, आपको जो एडवांसेस आपके 10% आपको चेक करने हैं. सी, लार्ज एडवांसेस आर दोस in respect of which the outstanding amount is in excess of 10% of the outstanding aggregate balance of fund based and non fund based advances of the branch are rupees 10 crore whichever is less. तो आपको फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड दोनों का काउंट करना है, दोनों को चेक करना है. हालांकि फीस हमारी फंड बेस्ड से ही आती है, बट इन लफार वी हैव टू चेक बोथ, कि अगर आपके फंड बेस्ड 100 करोड़ है, नॉन फंड बेस्ड 20 करोड़ या 50 करोड़ है, तो दोनों का काउंट करके 120 करोड़ या 150 करोड़ उसका 10% और 10 करोड़ विच एवर इज लेस, दैट्स योर लार्ज एडवांस. उसकी आपको डिटेल में फिर चेक करनी है. फिर आपको ये जो ए पॉइंट है, यहाँ पे भी आपको जो अकाउंट्स ऑडिट करें आपने, आइदर 30%, 40%, 50%, वट एवर, अगर आपके एलसीबीजी है तो आपको 100% चेक करने चाहिए. तो उस केस में यू हैव टू मेंशन द डिटेल बैलेंस एज द बैलेंस एट ईयर एंड. नॉन फंडेड, फंडेड तो देने ही देने हैं,
नॉन फंडेड भी देने हैं तो उसमें टोटल कितने हैं, टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ द ब्रांच कितने हैं, कितने एग्जामिन करें आपने ब्रांच में, फिर वो आपको बता रहा है कि एग्जाम्पल के साथ फंडेड एंड नॉन फंडेड उन दोनों का टोटल। दिस यू हैव टू मेंशन, क्या क्या ऑडिट चेकलिस्ट है, कैसे चेक करना है आपने, वो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी ऑडिट चेकलिस्ट। तो ऑडिट चेकलिस्ट में सेम थिंग, सेम जैसे आप फंड बेस्ड में चेक करते हो, नॉन फंड बेस्ड में चेक करते हो कि सैंक्शन, डिसबर्समेंट, डॉक्यूमेंटेशन, फिर आपका रिव्यू, मॉनिटरिंग, एनपीए, आई नॉर्म्स, एवरीथिंग इज द सेम, बट ओनली थिंग इट्स नॉन फंड बेस्ड। हम अभी तक फंड बेस्ड चेक कर रहे थे, तो फंड बेस्ड में सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि सीबीएस में मेंशन है आपके, वो पूरा पूरा रिकॉर्डिंग है एंड इट्स योर कंटीजेंट लायबिलिटीज। एंड देन उसके बाद अगर कोई एलसीबीजी अगर क्लोज होगी, एक्सपायर हो चुकी है, तो उसको भी उसकी अकॉर्डिंगली सीबीएस में उसको क्लोजिंग, उसमें टाइमली मैनर से उसको क्लोज हो रही है या चली आ रही है वो कब से। देन जो डॉक्यूमेंटेशन है एलसीबीजी के, वो प्रॉपरली वेरीफाइड हुए हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इनवॉइस एक्सेट्रा, उसके बाद ही पेमेंट होती है। एंड देन जो आपकी गारंटीज हैं वो आफ्टर द एक्सपायरी स्टिल इट्स अपीयरिंग इन द बुक्स, वो भी आपको चेक करना है। देन जो एक्सपायर्ड बट अनक्लेम्ड वीजी है, उसके ऊपर भी फॉलो अप हो रहा है या नहीं हो रहा। देन इन केस ऑफ अकाउंटिंग एंड रेवेन्यू कंप्लायंसिंग, जो बैंक अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ जो आप इशू कर रहे हैं उस टाइम तो कोई अकाउंटिंग नहीं होती, बिकॉज इट्स ओनली मेंशन इन द सीबीएस, वो आपकी कंटीजेंट लायबिलिटीज है। बट बैंक चार्ज सम फीस, जब वो एलसी या बीजी इशू करता है उसमें कुछ वो चार्जेस देते हैं, जैसे आपके इशुएंस के, फिर उसके आपको अगर अमेंडमेंट करना है, मॉडिफाई करना है, रिवोक करना है, उस केसेस में बैंक चार्ज करते हैं, तो इससे कमीशन, तो बैंक ने प्रॉपर कमीशन जो एज पर उसके सैंक्शन लेटर में है और जो उसमें मेंशन है वो चार्ज करी है या नहीं करी, उसके ऊपर जीएसटी भी चार्ज किया एंड प्रॉपरली डिपॉजिट हो रहा है या नहीं हो रहा, एंड देन उसकी प्रॉपरली अकाउंटिंग हुई या नहीं हुई, जो अमेंडमेंट एक्सटेंशन है, और इसमें इनकम रिकॉग्नाइज करा है, दैट्स फॉर द अकाउंटिंग एंड रेवेन्यू कंप्लायंस। हो सकता है यहाँ पे आपको आपका जो इनकम लीकेज पार्ट, कि उसने प्रॉपरली गारंटी, बैंक गारंटी के ऊपर कमीशन वगैरह चार्ज करी या नहीं करी, जो अदर चार्जेस हैं वो भी बैंक चार्ज कर रहा है नहीं कर रहा, दैट यू हैव टू चेक। देन इन केस ऑफ एनपीए एंड रिस्क मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स में, तो उस केस में अगर कोई किसी ब्रांच में, यू फर्स्ट आस्क द मैनेजर कि आपको करंट ईयर में कितनी एलसी एंड बीजी आपने इशू करी है, कितनी एलसी बीजी डिवोल्व हुई है, या एलसी डिवोल्व हुई है, बीजी इन्वोक्ड हुई है, या कितने कितने एक्सपायर हुए हैं, उसकी पूरी आप डिटेल लीजिए। देन सी कि अगर कोई फ्रीक्वेंटली कोई एलसी या बीजी इन्वोक हो रही है या एलसी डिवोल्व हो रही है, तो ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक शायद डाल दी उन्होंने, तो दैट यू हैव टू सी, आपको वो चेक करना है। एंड यू हैव टू चेक उसकी प्रॉपरली रिपोर्टिंग हुई है या नहीं हुई हायर अथॉरिटीज को, एंड देन उसके जो पोटेंशियल क्रेडिट लॉस है, एंड आल्सो अगर वो नॉन फंड से फंड बेस्ड में कन्वर्ट हो चुकी है, तो जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि कहीं उसको सेपरेटली तो नहीं शो कर रखा कि उसको अलग से पार्क कर रखो, नो, दैट शुड बी डेबिटेड इनटू द सीसीओडी, जो अकाउंट है या टर्म लोन है, जो भी उस पे मेंशन है उसमें होना चाहिए। एंड इफ नॉट डिवोल्ड या इन्वोक्ड है, तो दैट्स इनटू द कंटीजेंट लायबिलिटी। दिस इज द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू चेक इनटू द ऑडिट चेकलिस्ट। बाकी कुछ और डिटेल्स भी है, इफ यू पीपल नीड आई विल प्रोवाइड यू, नो इशू। देन 2 पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की, एडवांसेस में आपको कौन कौन से लार्ज एडवांसेस है दोनों का, एंड उसमें डिटेल मेंशन करनी है आपको पॉइंट ए में। नाउ इन 5G में, 5G में आपको देना है लिस्ट ऑफ बोरोवर्स with details of LGC devolved or guarantee, जो बैंक गारंटी invoked during the year। as I told you, आप बैंक मैनेजर्स जो भी आपका बैंक है उनसे यू शुड आस्क कि कितने कितनी आपने ड्यूरिंग आपने करंट ईयर में एलसी या बीजी आपने इशूड करी है, कितनी डिवोल्ड या बीजी इन्वोक हुई है, यहाँ पे आपको उनकी लिस्ट ऑफ बोरोवर्स डिटेल देनी है। तो यू शुड आस्क द मैनेजर, आप एमआरएल में भी इसको मेंशन कर सकते हो, अगर कोई नहीं है तो यू शुड मेंशन इट। और जो मैंने भी आपको बताया, इट शुड बी डेबिटेड टू द कैश क्रेडिट अकाउंट में। और आपका जो एलसी डेवलपमेंट जो है आपका, उसको चेक करके इसको रिपोर्ट अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको लफान में रिपोर्ट करनी है। देन अनदर रिपोर्ट पॉइंट 2, लिस्ट ऑफ बोरोवर्स वेयर एलसी हैज बीन डिवोल्व्ड or guarantee has been invoked but not paid with amount thereof, means LC तो डिवोल्व हो रही एंड गारंटी इन्वोक होगी एंड उसमें बैंक ने पेमेंट नहीं करी, व्हाट्स द रीजन। तो इन दैट केस
you should ask the bank manager कि what's the bank policy, how much time it takes, क्या issues आ रहे हैं, why payment has not been made, क्या follow up है या document में कुछ issues है, तो that everything you have to ask and take into the MRL. Clear? Then next, list of instances where the interchangeability between fund-based and non-fund-based facility was allowed subsequent to development of LC invocation of BG. कि I told you once LC revolved or BG invoked, then in that case it's the non-fund to the fund based. तो उस केसेस में एज ए ऑडिटर यू हैव टू चेक, जो भी हमने पीछे चेक किया था व्हाट्स द टोटल आउटस्टैंडिंग, उसमें उसके लोन्स अकाउंट में है या डेबिट किया है या उसको अलग से पार्क किया है, एवरी डिटेल यू हैव टू चेक एंड देन रिपोर्ट हियर इन नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी, जो पॉइंट नंबर 3 है. सो दिस इज रिगार्डिंग द आपका जो नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज है विच आर डिवोल्ड इन्वोक्ड, जो ड्यूरिंग द ईयर था उसको में हम अभी लास्ट में कुछ पॉइंट डिस्कस करें. तो जो मेजर थिंग्स है आपको इसके ऊपर भी पूरा डिटेल में चेक करना है. यू शुड आस्क द बैंक मैनेजर कि ड्यूरिंग द इतनी कितनी एलसीबीजी इशू करी है, अगर डिवोल्व इन्वोक नहीं है तो यू हैव टू चेक कि वो आपकी कंटीजेंट लायबिलिटीज में मेंशन्ड है, एंड देन अगर वो डिवोल्व या इन्वोक हुई है तो यू हैव टू चेक कि क्या बैंक ने फॉलो किए पेमेंट्स के लिए, वेदर इट्स और डेबिटेड इनटू देयर सीसीओडी अकाउंट या उसके लिए न्यू टर्म लोन अकाउंट या कोई और अकाउंट ओपन करें, एंड देन जो पेमेंट्स हुई है तो ऑल डिटेल्स यू हैव टू मेंशन एज द ऑडिट ऑफ द नॉन फंड क्रेडिट फैसिलिटी. तो यस पूजा जी, इसके अलावा कोई और आपकी क्वेरी है दैट यू कैन डिस्कस. सर अभी तो कोई क्वेरी नहीं है, एंड सर thank you so much sir for your information and for your valuable time which you have given. Thanks a lot sir. Thank you very much once again to the team CS Ansar for giving me once again opportunity. And if you people have some another query, then either you can WhatsApp or you can post into the comment box. I will try to reply as early as possible. Till then, bye bye. Take care.